Hello students, how are you all? Today I am going to start with a new chapter, that is chapter number 6 of NCERT, that is triangles and its property. So let's begin with the chapter. Chapter number 6, Triangles and its properties. We start with the triangles and its property. I want to explain you the term first, triangle. The term triangle comes from the word tri plus angle. Tri means three, in which a three line segment, three angles and three vertices are here. So we can simply say that triangle is a closed curve made up of a three line segments. It has three vertices, sides and angle. As I have shown you in a figure that A, B, C are the vertices and the inner angles are with the blue line. Okay, so that form a triangle and three sides are here, that is AB, BC and AC. So here is a form of triangle. The triangles, that is types on the basis of sides. So here in this first one is scalene triangle, in which the three sides, तीनों की तीनों साइड्स हमारी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं. तो इट मीन्स द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स आर डिफरेंट. इन द सेकेंड वन, दैट इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन विच एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज equal. And third one is the equilateral, in which all the sides are equal, means all the three sides are equal as well as their angles are also equal. So hence the equal means equal. Equilateral come from the word equal, so that's why equal with the side and equal from the angle. Now the types of triangle on the basis of angles. First one is acute triangle, obtuse triangle, and third one is a right triangle, in which acute triangle, it means have all the acute angle, means छोटे एंगल. एक्यूट मतलब होता है छोटा, मतलब 90 डिग्री से जो कम वाले एंगल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स. और अगर वो कॉम्बिनेशन से, उनके एक्यूट एंगल्स के कॉम्बिनेशन से जो हमारी ट्रायंगल फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड एक्यूट ट्रायंगल. सिमिलरली ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मीन्स हमारे पास जो एक एंगल है दैट शुड बी ऑफ ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब ऑब्ट्यूज मीन्स 90 डिग्री से बड़ा वाला एंगल. सो एक हमारे पास जो वन ऑब्ट्यूज एंगल होता है और जिसमें बाकी के रेस्ट ऑफ द टू एंगल्स जो हैं वो हमारे पास एक्यूट होते हैं. सो इट्स फॉर्म एन a triangle of obtuse triangle. Right triangle means in which one angle should be of 90 degree and rest of the angle should be of acute angles. So this form a right triangle. Median of the triangle. Median of the triangle is a line segment which made by joining any the vertex of the triangle with the midpoint of its opposite side. Median divides the sides into a two equal parts, in which every triangle has a three medians. Like in this figure, AE, CD and BF in the above triangle is shown as a median, because अगर हम ए, हमारे पास क्या है, ए बी सी तीन हमारे पास क्या है, वर्टिसेस. ए से हमने उस वर्टिस से हमने एक लाइन को ड्रॉ किया अपोजिट साइड पर, दैट इज बी सी पर. हमने उसको, अगर हमने एक लाइन पर एक लाइन को, अगर हमें उस लाइन को डिवाइड करना है तो हम ए वर्टिसेस से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, सो दैट मीडियन है. मीडियन का मतलब होता है उसे मिड पॉइंट से कट कर देना, मीन्स उसको वो टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है अपोजिट साइड को. सो ए ई इज अ मीडियन ऑफ सी बी, इन विच सी ई इक्वल्स टू द ई बी. सिमिलरली ए डी इक्वल्स टू द डी बी and AF equals to FC. So here is a concept of median. And here the center one, in which all these lines intersect each other, so that central one portion is said to be as a centroid. So here is a concept of centroid, means center में जो intersection point है इन तीनों median का, that is called centroid.
The altitude of a triangle. Altitude of a triangle is a line segment made by joining the vertex and the perpendicular to the opposite side. Altitude is the height if we take the opposite side as the base. In this figure you can see that एक हमारे वर्टेक्स से अगर हम उस लाइन को ड्रॉ करते हैं उसकी अपोजिट साइड पर, तो ज़रूरी नहीं है वो उसके हमेशा मिड पर ही जाकर ज्वाइन होगा. एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो दूसरी साइड पर जाकर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दे, दैट इज सेड टू बी एज अ एल्टीट्यूड. ओके, परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या होता है? एल्टीट्यूड. सो दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल. नाउ here is a figure in which these points or these perpendiculars means 90 degree. So the altitude form an angle of 90 degree. There are three altitudes possible in a triangle. Okay, so here are three perpendiculars are here. The point of intersection of all the three altitudes is called orthocenter. So this center is called altitude. में जो center one है इन लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इज सेड टू बी एज ऑर्थोसेंटर. नाउ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इन विच 1, 2, 3 shows as a interior angle because ये हमें उस ट्रायंगल के अंदर दिख रहे हैं. That's why it is said to be as a interior angle. बाहर के एंगल का मतलब होता है एक्सटीरियर. सो 4 and 5 में हम उसे एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कर सकते हैं, बट in shown in a 6 point there cannot be an exterior angle. हम यहाँ पर exterior angle को draw नहीं करते हैं. Okay, so we can see if we extend any side of a triangle then we get an exterior angle. हमें दो साइड्स होती हैं हमारे पास, है ना. दो साइड्स को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो उन साइड से जो उसके साथ वाला एंगल फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सटीरियर एंगल. ओके, नाउ एक्सटीरियर एंगल मस्ट फॉर्म अ लीनियर पेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए जैसे ही हम इस एक्सटीरियर एंगल को फॉर्म करेंगे तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन लाइक 3 और 4 का कॉम्बिनेशन क्या फॉर्म कर देगा? लीनियर पेयर. सिमिलरली 3 and 5 का कॉम्बिनेशन हमें क्या फॉर्म कर देगा? लीनियर पेयर. सो देयर आर ओनली 2 एक्सटीरियर एंगल possible at each of the vertices. Now exterior angle property in which an exterior angle of a triangle will always be equal to the sum of the two opposite interior angles of a triangle, in which here D is the exterior angle which should be equals to angle A plus angle B because A and B both are the interior angle और opposite हैं, D के opposite पर हैं A और B, hence D angle should be equals to angle A plus angle B. Now here is an example of an exterior angle property of a triangle in which आपके पास 64 and 45 इंटीरियर एंगल गिवन है. ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? x कहाँ पर है? एक्सटीरियर में है. सो इसका हमें फॉर्मूला सिंपल सा पता है दैट x इक्वल्स टू 64 प्लस 45. सो अगर मैं 64 प्लस 45 करूंगी तो आंसर विल बी 109. सो x का आंसर क्या हो जाएगा? 109. विच प्रॉपर्टी? इट्स एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. Now, angle sum property of a triangle. This property says that the sum of all the interior angles of a triangle is 180 degree. Okay, हमें दिख रहा है कि जो भी like green shade है या red shade है और blue shade है, ये सब क्या है? इंटीरियर एंगल है. तो एक ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होंगे, लाइक ट्रायंगल्स में 3 ही एंगल होंगे और तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. सो दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी. एग्जाम्पल ऑफ angle sum property in which we have to find x and y value. Now like x and y को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम x को देख रहे हैं. हमें दिख रहा है कि वो एक्सटीरियर में है ना, और 58 डिग्री का एंगल जो है वो इंटीरियर में है. बट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म होता है? दैट इज लीनियर पेयर. हियर इज अ लीनियर पेयर दैट 58 और x के कॉम्बिनेशन से लीनियर पेयर फॉर्म हुआ. लीनियर पेयर का मतलब है इन दोनों का सम 180 होगा. सो x प्लस 58 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर. सो 58 यहाँ पर प्लस हो रहा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अगर मैं उसे राइट हैंड साइड लेकर जाऊंगी तो दैट शुड बी माइनस. सो 180 माइनस 58 दैट इज 122
डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टू प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं। आइदर एंगल सम प्रॉपर्टी, हम तीनों एंगल्स का सम कर दें, इंटीरियर एंगल्स का सम कर दें, या फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी हम उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको दोनों वे से बताती हूँ। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स का सम कर दो। लाइक 60 डिग्री प्लस 58 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। सो लाइक दिस यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कैसे होगा, x कहाँ है एक्सटीरियर में, उसके अपोजिट में कौन कौन से एंगल है, y और 60 डिग्री। x की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल ली, दैट इज 122। सो 122 इज इक्वल्स टू 60 प्लस y को हमें निकालना है। सो 60 डिग्री को हम लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस कर देंगे। सो आंसर विल बी 62 डिग्री। सो लाइक दिस यू कैन अप्लाई एनी मेथड एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. The triangle property. In triangle property, sum of the length of two sides of a triangle should be greater than that third side of the triangle. So हमें इतना पता है कि ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स का सम अगर हम करेंगे वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा ही होगा। अगर बाई चांस या फिर ऐसा हो जाए कि उसका साइज छोटा आ जाए तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि दैट ट्रायंगल कैन नॉट बी पॉसिबल, और वो पॉसिबल रियली नहीं हो सकती, वो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो सकती। सो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल प्रॉपर्टी. There is an example of triangle property in which 2 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter is given as a side of a triangle. अगर मैंने 2 और 5 को ऐड किया तो इसका आंसर क्या होगा, 7. ये 2 + 5 का सम थर्ड साइड से बड़ा है, दैट इज 6 सेंटीमीटर से वो बड़ा है 7. सो नेक्स्ट इज 6 + 5 को ऐड करो, दैट इज 11. क्या 11 2 से बड़ा है, यस. एंड देन 6 और 2 को ऐड करेंगे, दैट इज 8. 8 5 से बड़ा है, यस. तीनों के केसेस में ये कैसा है, ये थर्ड साइड से बड़ा है. सो इसके अकॉर्डिंगली हम एक ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स राइट का मतलब है 90 डिग्री. एक कॉर्नर पर हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा. इट मीन्स अ राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल विच हैज अ वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री, और इसकी जो अपोजिट साइड होगी दैट शुड बी अ लॉन्गेस्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपोटेन्यूज. तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज. एंड जो हमारे पास दो लेग्स होती हैं, एक जो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है दैट इज सेड टू बी एज परपेंडिकुलर, एंड जो हमारे पास बेस वन है मीन्स जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में जो साइड है दैट इज सेड टू बी एज अ बेस. This right angle triangle is very important for a Pythagoras theorem. In Pythagoras theorem, it is said to be as a hypotenuse square is equals to base square plus height square. Base means जो horizontal में वन था, और जो height है that is said to be as a perpendicular one. So हमारे पास यहाँ पर Pythagoras theorem तब आती है जिसके लिए हमारे पास right angle triangle होना कंपल्सरी है. सो इट्स अ पाइथागोरस थ्योरम का ये फॉर्मूला है दैट h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. Here is an example for how we can use this Pythagoras theorem. Like find the value of x in a given triangle if the hypotenuse is 5 centimeter and height is 4 centimeter. Okay, so it means हमारे पास base given नहीं है, so base की value निकालनी है. Simple formula क्या था हमारे पास, h square is equals to base square plus height square. So 5 का square is equals to x square plus 4 square. 5 का square का मतलब होता है 5 into 5. 5 को 2 times लिख दो. So 5 into 5 that is 25, and 4 का square मतलब 4 को भी 2 times लिख दो. 4 into 4 that is 16. अब 5 हमें x square निकालना है. So 4 square को हमें लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाना पड़ेगा. सो 25 minus 16. सो 25 minus 16 is 9. दिस इज एक्स स्क्वायर, पर हमें तो x निकालना है, सिर्फ x स्क्वायर नहीं निकालना. सो 9 किसका स्क्वायर है, दैट इज 3 into
3 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 9. सो इट मीन्स x की वैल्यू कितनी होगी 3, दैट इज 3 सेंटीमीटर. Hope you all are clear with this tutorial. So next time we will begin with a new exercise of 6.2 and 6.3. So till then, take care and take care of your family. Bye bye.